بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہاسٹل میں رہتا تھا پڑھائی کی وجہ سے، جبکہ میرے گھر والے دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میرا نام مزمل تھا۔ ایک دن میرے لیے بڑی حیران کن بات ہوئی تھی۔ میں کتابوں میں گم بیٹھا پڑھ رہا تھا جب مجھے کال آئی۔ میں نے موبائل دیکھا تو میری اماں کی کال تھی۔ میں نے فوراً کتاب بند کر کے ان کی کال پک کی، ان سے خیر خیریت پوچھی۔ باتوں کے دوران اماں نے کہا کہ تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ میں سن کر حیران ہو گیا کہ میرے لیے رشتہ؟ اصول تو یہ تھا کہ لڑکی کے لیے رشتہ آتا ہے، مگر یہاں لڑکی کے لیے آیا تھا۔ میں نے یہی بات اماں سے کہی تو وہ ہنس دیں۔ تمہاری خالہ نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ بھیجا ہے، مجھے تو منظور ہے اور راضی ہوں، مگر تم بتاؤ ہاں کہہ دوں تمہاری خالہ کو؟ انہوں نے پوچھا تو میں نے ان سے سوچنے کا وقت مانگا تو انہوں نے دے دیا۔ میرے ایگزام تھے، میں واپس پڑھائی میں گم ہو کر اس بات کو بھول گیا، مگر میری پڑھائی جب مکمل ہو گئی اور میں واپس اپنوں کے بیچ میں آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا رشتہ اماں نے اپنی بھانجی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ مجھے تب ان کی بات یاد آئی، مگر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اس بات پر۔ لیکن اکثر خاندان والے مجھ سے کہتے تھے کہ اپنے رشتے پر ایک نظر ثانی کر لو، سوچ سمجھ لو، مگر میں ہمیشہ ٹال دیتا کہ اماں نے کیا ہے تو میرے لیے بہتر سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ تو ایک بار مل ہی لو اپنی ہونے والی بیوی سے، پھر دیکھنا تمہاری سوچ بدل جائے گی۔ یہ ان کا دوسرا جملہ ہوتا تھا، کیونکہ میں نے کبھی اپنی کزن کو نہیں دیکھا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ میں ہاسٹل میں رہا کرتا تھا پڑھائی کے سلسلے میں۔ اماں نے خالہ کا بتایا تو خود انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے۔ منع نہیں کرتے، اچھا نہیں لگتا تھا، تبھی انہوں نے ہاں کر دیا، اس لیے میں نے سب ان پر چھوڑ دیا۔ لیکن اب خاندان والوں کی باتیں مجھے جانے کیوں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میں نے ان ساری باتوں کا اماں سے ذکر کیا تو کہنے لگیں، ارے چھوڑو، ان سب کو حسد ہوتا ہے، میری بھانجی تو بہت خوبصورت اور خوب سیرت ہے، اور خاص کر کے اکلوتی بیٹی ہے میری بہن کی۔ وہ خاندان والے تو جلتے ہیں کہ اتنی اچھی لڑکی ہمارے گھر کی بہو بنے گی۔ اماں کی بات سے میں مطمئن ہو گیا۔ بھلا اگر میری کزن میں کوئی ایسی بات ہوگی تو اماں اس کی بھلا ایسے کیوں اپنے بیٹے سے شادی کرواتی؟ یا پھر اس میں کوئی نقص ہوتا تو وہ بتا دیتی مجھے۔ ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے بھی اپنے خاندان والوں کی باتوں پر دھیان دینا بند کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اماں نے میری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا اور اماں نے کہا کہ شادی کی تاریخ تمہاری ہونے والی بیوی خود بتائے گی۔ مجھے تو یہ بات قطعاً نہیں جچی۔ میں نے اماں کو کہا کہ شادی کی تاریخ ہم رکھیں گے یا پھر ان کے بڑے، مگر یہ کیوں رکھے گی شادی کی تاریخ؟ لیکن اماں نے کہا ان کی مرضی، بھلا جو بھی تاریخ رکھے، تم چھوڑو ان باتوں کو۔ اماں کی اس بات نے مجھے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی کر دیا تھا۔ جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہونے والی تھی، اس وقت لڑکی والوں کو کسی مسئلے کی وجہ سے جلدی تھی تو شادی کی تاریخ وہ رکھ رہے تھے، مگر اماں نے منع کر دیا تھا کہ یہ حق ہے ہمارا تو ہم ہی رکھیں گے شادی کی تاریخ۔ مگر ادھر تو اماں نے یہ حق سرے سے ہی لڑکی والوں کو دے دیا تھا۔ خیر، لڑکی کی طرف سے کچھ دنوں میں تاریخ بھی مل گئی۔ جو اس نے شادی کی تاریخ رکھی تھی وہ تاریخ تھوڑا دور تھی، مگر اماں اس میں بخوشی راضی تھی۔ میں اس حق میں نہیں تھا کہ ان کی دی ہوئی تاریخ مانی جائے۔ اس بات پر میں نے اماں سے بحث بھی کی تھی، پر انہوں نے میری ایک نہ سنی، یہ کہہ کر اچھا ہوا دور کی تاریخ رکھی، ہم شادی کی تیاری تو اچھے سے کر سکیں گے نا۔ اور میں بھی کچھ ایسی ہی تاریخ سوچ رہی تھی۔ بھلا ہو میری بہو میری سوچ تک شاید پہنچ گئی تھی۔ جو میری سوجھی ہوئی تاریخ دی اس نے، ان کی بات پر میں خاموش رہ گیا، مگر میرے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ اماں کیسے ان کی باتوں کو مان رہی تھی، اپنے سوا کسی کی نہیں مانتی تھی وہ۔ اسی طرح سوچتے سمجھتے حیران پریشان، مگر آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ اماں نے خوب شادی کی تیاری کر لی، اور پھر آخر وہ دن بھی آ گیا جب میرے سر پر صحرا سجایا گیا اور میری بارات گھر سے نکلی۔
मेरा निकाह जिस शख्स ने पढ़ाया, मुझे वो शख्स बड़ा ही अजीब व गरीब लगा था। वो कहीं से भी दिखने में मौलवी नहीं लग रहा था। अजीब सा हुलिया था उसका। गले में, हाथों में बहुत सारी मालाएं पहने हुआ था वो। निकाह के बाद मैंने अम्मा को अपने पास बुलाया कि अम्मा, ये निकाह के मौलवी तो नहीं लग रहे थे, कौन थे ये? मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि मुझे ये बात खटक रही थी। ये बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग बाबा हैं। इन्होंने तुम्हारा निकाह पढ़वाया है ताकि तुम्हारी आने वाली जिंदगी में बरकत हो और सदा खुश रह सको। ये तुम्हारी बीवी के जानने वाले हैं। मेरी अम्मा ने कहा तो मैंने हैरत से उनको देखा। उन्होंने किसी तावीज़ दम करवाने वाले बाबा से हमारा निकाह पढ़वाया था। अम्मा, आप कब से मानने लगी इन बातों को? मुझे पसंद नहीं आई थी उनकी बात। बेटा, इनके हाथ में भी बड़ी शिफा है, बस ज्यादा मत सोचो इस बात को। वो मेरा कंधा थपथपा कर चली गई। पीछे मैं हैरान सा बैठा रह गया। रुखसती के वक्त भी मेरी दुल्हन उन बाबा के साथ गाड़ी तक आई। मैंने उसकी इस हरकत पर शिकवा कना नजरों से अपनी माँ को देखा। उन्होंने मुझसे नजरें चुरा ली। असल में तो मेरी दुल्हन को मेरे साथ आना था गाड़ी तक, लेकिन वो नहीं, वो उस बाबा के साथ आ बैठी थी। मैं गुस्से से गाड़ी में बैठा था। मेरा मूड बहुत खराब हो गया था, इसलिए मैंने एक नजर भी अपनी दुल्हन को नहीं देखा था। वो बाबा भी हमारे साथ हमारे घर तक चले गए थे। मैंने अम्मा से एतराज भी किया था, मगर उन्होंने कहा वो मेरी दुल्हन को हमारे घर तक छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन मेरे लिए शदीद हैरत का झटका था। जब हम अपने घर पहुंचे तो पहले उस बाबा ने कुछ पढ़कर घर के दरवाजे पर फूंका। उसके बाद हम सब घर में चले गए। उन्होंने मेरे कमरे का जायजा लिया, पूरा और अच्छे तरीके से कमरे को देखा और अपने कमरे का पूछने लगे। मैंने अम्मा की तरफ देखा कि वो क्यों अपने कमरे का पूछ रहे हैं। वो बाबा जी यहाँ आज रात रुकेंगे। ये पहली बार था जब मेरी दुल्हन बोली थी और मैंने अपनी दुल्हन की आवाज पहली बार सुनी थी। बहुत खूबसूरत और मीठी आवाज थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। उसकी बात पर अम्मा ने एतराज तो नहीं किया, मगर मेरे भाई समेत मुझे भी इस बात पर एतराज था। मगर हमारे घर में अम्मा का हुक्म चलता है, तो उनकी बात से कोई भी इनकार नहीं करता था और यूं उनको घर के एक कमरे में ठहरा दिया गया। अगले दिन मैं जब उठा तो मेरी नई नवेली बीवी कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने रात पहली बार उसको देखा था। जैसा अम्मा ने कहा था बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत थी वो। मैं जब उठकर फ्रेश हुआ और कमरे से बाहर निकल आया तो मेरी बीवी उस बाबा जी की खिदमत में लगी हुई थी। मुझे ये मंजर जरा भी पसंद नहीं आया। मेरी बीवी के घर वाले नाश्ता ले आए थे, जिसमें कई किस्म के लवाजमात थे जो मेरी बीवी एक एक करके अपने उस बाबा जी के सामने पेश कर रही थी। मुझे वहां देखकर भी उसने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे अपना नज़रअंदाज किया जाना बहुत बुरा लगा। मैंने जोरदार आवाज में सलाम किया तो सबने मेरी तरफ देखा। मुझे हैरत हो रही थी इस बात की कि मेरी बीवी उस बाबा को कैसे इतनी अहमियत दे रही थी। हर बात में, हर अंदाज में उनको इतनी अहमियत क्यों? कोई तो वजह थी जो मेरी अम्मा भी खामोश थी और मेरी बीवी की हाँ में हाँ मिलाए हुए थी। मगर फिल वक्त मुझे कोई बात समझ नहीं आई, इसलिए मैंने सुकून से नाश्ता करना चाहा। नाश्ते के बाद वो बाबा जी मेरी बीवी से कुछ बात करने के बाद चले गए। मेरे सास ससुर भी कुछ देर में चले गए। हम दोनों मियाँ बीवी भी कमरे में आ गए तो मैंने अपनी बीवी से उस बाबा जी के बारे में पूछा कि वो क्यों इतनी अहमियत दे रही थी उनको। मगर मेरी बीवी के दो टोक जवाब ने मुझे शशदर कर दिया। आप इस बात से दूर रहें और अपनी माँ की तरह सिर्फ मेरी बात पर हाँ में हाँ मिलाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तो उसके अंदाज़े गुफ्तगू पर दम साध बैठा था। अपने शौहर से कोई बीवी इस तरह भला कैसे बात कर सकती है, वो भी शादी के पहले ही दिन। मुझे यकीन हो गया पक्का कोई ना कोई वजह थी जिस वजह से मेरी अम्मा भी चुप थी और मेरी बीवी जो इस अंदाज में मुझसे बात कर रही थी उस अंदाज में भी कोई वजह होगी, कोई ठोस बात जो वो ऐसा कर रही थी। ये तो मुझे कल ही मालूम हो गया था कि मेरी बीवी बहुत अमीर थी और इकलौती होने की वजह से अपने बाप की सारी जायदाद की वो इकलौती मालिक थी। जहेज भी उसको बहुत खूब मिला था कि जो देखने आता देखता रह जाता। मेरे खानदान वालों के तो मुंह बने हुए थे जहेज को देखकर।
मैं उनके सड़े हुए मुंह बने देखकर समझ गया, अम्मा सही कहती थी। वो सिर्फ जलते थे इस बात से कि मेरी बीवी बहुत अमीर थी, वरना इसमें तो बज़ाहिर कोई नक्स नहीं था भला। मुझे दिल ही दिल में खुशी हो रही थी उन सबको जलते देखकर। खुश हो जाओ, चंद दिन की खुशी है, फिर तुम्हें असल हकीकत पता चलेगी और इस लड़की का पागलपन भी दिखेगा तुम्हें। फिर पता लगेगा कि हम क्यों मना करते थे तुम्हें। ये बात मेरी एक आंटी ने मुझसे कही थी। उनकी बात मुझे समझ नहीं आई थी, मगर दिल में ज़रूर बैठ गई थी कि उनकी बात का मतलब व मकसद क्या था। फिर शादी के चंद दिन सुकून से गुजर गए। उसके बाद वो बाबा अब वापस नहीं आए थे। हाँ, मगर मैं अक्सर अपनी बीवी को फ़ोन पर उनसे बात करता देखता था। मैंने समझाने की कोशिश की थी उसको कि अच्छा नहीं लगता यूं वो उनसे बात करे, मगर उसका वही पहले वाला अंदाज ऊद कर आया और मुझे खामोश करा गया था। और आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर यह राज खुलता चला गया कि मेरी बीवी हर बात, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़े से बड़ी, अपनी हर बात में पहले उस बाबा से राय लेती थी। जैसा वो कहते वैसा करती। हमारी तो बिल्कुल भी नहीं सुनती थी और अक्सर बातों पर एतराज़ होता हमें तो वो भड़क जाती थी। उसका इतना शिद्दत पसंद अंदाज उसे पागल दिखा रहा था। मैंने अम्मा से पूछा आखिर क्यों वो ऐसी है और ये सब कर रही थी। हर बात में उस बाबा से राय लेना क्यों ज़रूरी है उसके लिए। मगर मेरी अम्मा ने लाइल्मी का इजहार किया था कि उनको नहीं पता वजह इस सब की। पर मुझे लग रहा था जैसे अम्मा को पता था, वो मुझे नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मेरी बीवी तो अम्मा की सगी भांजी थी, उनकी बहन की बेटी थी। भला एक बहन की बात दूसरी बहन से छुप सकती है? नहीं ना, नामुमकिन था ये। जबकि अम्मा तो छोटी बहन थी उनकी और वो बड़ी बहन थी अम्मा की। पहले उनकी शादी हुई थी, उसके बाद अम्मा की, और अम्मा की 3 औलादें थीं, जबकि मेरी बड़ी खाला की सिर्फ एक बेटी जो मुझसे छोटी थी, और मैं भी अपनी अम्मा की छोटी औलाद था। मेरी खाला के यहाँ बहुत देर से औलाद हुई थी, वो भी अकलौती। ये सब बातें हमें अम्मा ने बताई थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, हम आराम से रह रहे थे वहाँ, मगर मेरी बीवी ने नई बात छेड़ दी थी जो मुझे तो कतन मंजूर नहीं थी। लेकिन अम्मा पर तो जैसे उसने जादू किया था। वो जो कहती अम्मा हाँ में हाँ करती। उसके अभी भी ऐसा ही हुआ था। अम्मा मुझे उसकी बात मानने के लिए कायल कर रही थी। मेरी बीवी को जाने क्या सूझी थी। उसके बाप ने उसको एक नया घर लेकर दिया था और वो चाहती थी हम दोनों वहां शिफ्ट हो जाएं। मैं हमेशा हॉस्टल में रहा था, घर वालों से दूर। तो मैं अपने घर वालों से इसलिए अटैच था और मैं नहीं चाहता था फिर से उनसे दूर हो जाऊं। मगर मेरी बीवी कुछ मानने सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए अम्मा के मजबूर करने पर मुझे दूसरे नए घर शिफ्ट होना पड़ा। और यहाँ शिफ्ट होने की भी एक बहुत बड़ी वजह थी जो मुझे यहाँ आकर ही मालूम हुई थी। जिस दिन हम इस घर में आए थे तो पहले से ही इस घर में वो बाबा जी मौजूद था। वहाँ मुझे उनको देखकर हैरानी हुई। भला उनके आने की क्या वजह थी अब? मगर मेरी बीवी ने उनसे पूछा, बाबा घर ठीक है ना? बिल्कुल कोई परेशानी की बात तो नहीं यहाँ? नहीं, ये ठीक है। उनकी आवाज में बहुत रौब था और बात भारी लहजे में कही गई थी। मेरी बीवी उनकी बात से खुश हो गई और फौरन आते साथ ही किचन में लग गई। हमारे घर में कभी उसने किचन का रुख नहीं किया था और यहाँ वो खुद खाना बनाने लगी थी। बाद में पता चला कि उसने खाना अपने उस बाबा के लिए बनाया था। उस बाबा की इतनी खिदमत मुझसे हजम नहीं हो रही थी। जाने क्या वजह थी जो मेरी बीवी उनकी गुलामी कर रही थी। और तभी खाने खाने में मुझे मालूम हुआ कि मेरी बीवी ने उनके ही कहने पर घर तब्दील किया था। किसी वजह से मैं ये बात सुनकर उनकी तरफ मतवज्जे हो गया, मगर उन लोगों ने उसके पीछे की वजह डिस्कस नहीं की थी, इसलिए मैं दूसरी वजह से महरूम हो गया। लेकिन रात को सोने से पहले मैंने अपनी बीवी से इस बात का जिक्र किया था और वजह भी पूछी थी कि हमारा अपना घर इतना अच्छा तो था, फिर क्यों तब्दील करना पड़ा घर? वो मेरे लिए ठीक नहीं था घर। उसने दो टोक जवाब दिया और सो गई थी। आम वक्त में वो मेरे साथ बहुत अच्छी रहती थी, बात भी अच्छी तरीके से करती थी, पर अगर किसी भी बात में जिक्र कभी उस बाबा का आ जाता तो वो इस तरह ही जवाब देती थी और ऐसा अंदाज अपनाती थी वो कि अगले को
وہ کھا جائے۔ مجھے اس کی یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی تھی مگر خاموش ہو گیا تھا۔ اگلے دن سے میرا دفتر جانا شروع ہو گیا تھا اور میں واپس اپنی روٹین میں آ گیا۔ میری بیوی نے گھر میں کام کے لیے نوکرانی رکھی تھی جو کھانا وغیرہ بھی بناتی اور گھر کے کام بھی کرتی تھی، مگر کبھی اگر وہ بابا آتے تو کھانا میری بیوی ان کے لیے خود بناتی تھی۔ وہ بابا مہینے میں صرف 2 بار ہمارے گھر کا چکر لگاتے تھے۔ مجھے اپنی بیوی کا ان کے ساتھ ایسا رویہ پسند نہیں تھا۔ ایک دن میں نے ان سب سے تنگ آ کر اپنی ساس جو کہ میری خالہ بھی تھی ان سے پوچھا ان کی بیٹی کے ایسے رویے کی وجہ اور اس بابا کی وجہ، مگر بیٹی تو بیٹی، ماں بھی ماں، ان کے جواب نے تو میرے اوپر آسمان گرا دیا۔ تم اس کی ان باتوں پر دھیان مت دو، وہ جو کرے خاموش رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ تم سے شادی کی ہے میری بیٹی نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس پر پابندیاں لگاؤ۔ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، جو کرے۔ میرا تو دماغ گھوم گیا۔ انہوں نے کبھی اس طرح سے بات نہیں کی تھی مجھ سے، مگر اپنی بیٹی کی طرح وہ بھی اس ذکر پر بھڑک گئی تھی اور بات کہاں سے کہاں لے گئی تھی وہ۔ اب میں کس سے پوچھتا، کیسے معلوم کرتا؟ اس لیے خاموشی میں ہی عافیت تھی۔ مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ میرے گھر خود رشتہ بھیجنے کی بھی کوئی وجہ ہوگی ان کی، بنا وجہ کے تو وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات سمجھ آ گئی تھی مجھے، لیکن ساری بات وہی تھی، پوچھوں کس سے؟ یہاں تو ہر کوئی کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ یوں ہی کچھ عرصہ اور گزر گیا۔ میری بیوی کو بچوں کا شوق ہونے لگا کہ ہمارے بھی بچے ہوں۔ میں نے تسلی دی، ہو جائیں گے، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ اس نے بھی میری بات سے اتفاق کیا تھا۔ ایک بار میں دفتر سے لوٹا تو میری بیوی گھر میں موجود نہیں تھی، جبکہ دروازہ نوکرانی نے کھولا تھا۔ میں نے پورے گھر میں اپنی بیوی کو تلاش کیا۔ جب وہ نہیں ملی تو میں نے نوکرانی سے اس کا پوچھا، صاحب جی مجھے تو نہیں بتا کر گئیں وہ۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا، مگر اسی وقت مجھے فون آ گیا جو اماں نے کیا تھا۔ میں نے فوراً ان کی کال پک کر لی، مگر آگے سے جو بات انہوں نے کی اس پر یقین کرنا مشکل تھا میرے لیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری بیوی ان کے پاس آئی ہوئی ہے، اب وہ مجھے بلا رہی ہے کہ میں لے کر جاؤں اس کو وہاں سے۔ وہ اپنا موبائل بھی گھر ہی بھول گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ میری بیوی ان سے ملنے گئی تھی۔ اس کو میری اماں سے اتنی محبت نہیں تھی کہ وہ ان سے ملنے جائے۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ میری بیوی گھر سے کس وقت یہاں سے نکلی ہے۔ صاحب جی صبح آپ کے پیچھے ہی نکل گئی تھی، وہ جب آپ دفتر کے لیے جا رہے تھے۔ میں اس کی بات سن کر اپنی اماں کے گھر چلا گیا۔ میں نے اماں سے بھی جانے کیوں یہ سوال کیا کہ میری بیوی ان کے پاس کس وقت آئی تھی۔ اماں نے کہا کہ بمشکل 1 گھنٹہ ہوا تھا اسے وہاں۔ میں یہ سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ راستے میں باتوں باتوں میں اپنی بیوی سے کہا، مجھے لگا تم شاید اپنے مائکے گئی ہوگی۔ نہیں، میں وہاں کیوں جاؤں گی، آج میرا دل کر رہا تھا خالہ سے ملنے کا تو آ گئی یہاں۔ اس کی بات پر میں نے سر ہلا دیا، مگر میرے دماغ میں سوچوں کا جال بن گیا۔ وہ گھر سے صبح کو نکلی تھی تقریباً 8:30 بجے، اور میری اماں کے پاس وہ 1 گھنٹہ پہلے گئی تھی، مطلب 5 بجے یا 5:15 بجے، کیونکہ اس وقت 6:30 ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کے چہرے کے تاثرات دیکھے، وہ بالکل نارمل تھے۔ پھر وہ اتنا وقت کہاں تھی؟ اپنے مائکے بھی نہیں گئی تھی۔ اپنی بیوی کی طرف سے مجھے پریشانی رہنے لگی۔ اب وہ مسلسل 3 دنوں سے ایسا ہی کر رہی تھی اور میں وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخر کار میں ایک روز دفتر سے گھر آیا تو میری بیوی چیخنے لگی، تم باپ نہیں بن سکتے، مجھے طلاق دے دو۔ اس کی اچانک اس بات پر میں ہک دک کھڑا تھا۔ کیسا الزام تھا اور کیا مطالبہ تھا؟ دونوں باتوں نے مجھے وہیں پتھر کا کر دیا تھا۔ میں نے بامشکل خود کو سنبھالا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کس نے کہا تم سے یہ؟ میں نے بہت غصے میں اس سے پوچھا۔ مجھے پتا ہے، سب مجھے بابا جی نے کہا ہے، اور جو وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ تم باپ نہیں بن سکتے، اس بات کا ثبوت یہ ہے۔ اس نے میرے سامنے اپنا ہاتھ کیا، اس کے ہاتھ میں راکھ تھی۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی، بس اتنا سمجھ گیا کہ اس بابا نے اس سے یہ بات کہی تھی۔ یہ وہ تعویذ ہے جو میں مسلسل بابا جی سے لے کر تمہارے پرانے گھر کے کمرے میں رکھ رہی تھی، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ہمارے یہاں بچے کب ہوں گے۔ مگر ٹھیک 3 دن کے بعد اب یہ جل کر راکھ ہو گئے ہیں تعویذ، جس کا مطلب ہے تم باپ ہی نہیں بن سکتے۔
उसने वो राख जमीन पर गिरा दी और मैं अचंभे से उसको देख रहा था। कैसे कैसे काम कर रही थी वो, उस बाबा के एतमाद में इतनी अंधी होकर अपना घर बर्बाद करने पर तुली हुई थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो इसलिए मेरी अम्मा के घर जाती है। यानी वो सुबह को उस बाबा के पास जाती थी, उससे तावीज़ लेकर वो अम्मा के पास इसलिए जाती थी ताकि आसानी से मेरे उस घर के कमरे में तावीज़ रखाए। अब तो उसने हद ही कर दी थी। उसके पागलपन ने आज इंतहा पर ला खड़ा कर दिया था मुझे कि वो मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी। नौकरानी किचन में खड़ी खामोशी से सब देख रही थी। जब वो किचन से निकलकर हमारी तरफ आई और तभी नौकरानी मेरी बीवी से कहने लगी, बीबी अपने शौहर की शादी 1 माह के लिए मुझसे करवा दो, मैं इसका इलाज कर दूंगी। मैं तो उसकी बात सुनकर साकित हो गया और मजीद झटका तब लगा जब मेरी बीवी मान गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं गुस्से से बोला, जबकि मेरी बीवी ने कहा कि या तो मुझे तलाक दो या अपना इलाज करवाओ, और इलाज ये है कि तुम इस नौकरानी से शादी करोगे। सिर्फ 1 माह ही की तो बात है। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूं। ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ? क्या सच में मेरी बीवी पागल थी? खानदान वालों की जो बातें वो शायद बिल्कुल सच थी। और मुझे याद आया जब एक आंटी ने मेरी शादी के पहले दिन कहा था, जो मुझे अब लग रहा था हाँ, उन्होंने बिल्कुल सच कहा था। मेरी बीवी वाकई पागल थी, जो उन सब चीज़ों पर यकीन करके अपने साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रही थी। मगर मैं अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं होने दे सकता था। मुझे अपनी बीवी को समझाना था, इन सब से रोकना था, वरना आगे हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें होनी थी। इस वजह से वो जो यूं ज़रा ज़रा सी बात पर बाबा के बताए अमल कर रही थी, ये सब बहुत बुरा था। देखो मेरी बात सुनो, हम डॉक्टर से भी इलाज करवा सकते हैं और पहले ये मालूम भी कर सकते हैं कि सच है या नहीं, मैंने उससे कहा और नौकरानी को वहां से जाने का इशारा किया तो वो मुस्कुराकर चली गई। मुझे बहुत अजीब लगी उसकी मुस्कुराहट, मगर मेरे पास इस बात का सोचने का वक्त ही नहीं था। क्या मतलब तुम्हारी बात का कि बाबा जी गलत बयानी कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं? ऐसा सोचना भी मत तुम, वरना मार दूंगी तुम्हें अगर बाबा जी के बारे में कुछ भी गलत कहा तो। मेरी बात समझने के बजाय वो मजीद भड़क उठी थी। मैंने सारी सिचुएशन अपनी अम्मा को बता दी और साथ में कहा कि मेरी बीवी को समझा दें। मगर मुझे अचंभा हुआ जब अम्मा ने कहा कि मान जाओ, इसमें कोई मसला नहीं, तुम्हारा इलाज हो रहा है ये। अम्मा आप मुझे भी गलत कह रही हैं, यानी मैं वाकई बाप नहीं बन सकता, आप भी यही कहना चाह रही हैं? अम्मा, उस बाबा ने बताया वो पत्थर पर लकीर नहीं हो गया, गलत भी हो सकता है, मैंने उनसे कहा। पर वो उल्टा मुझे समझाने लगी और सख्ती से मना किया कि खबरदार, जो तुमने अपनी बीवी को तलाक दी तो मुझसे बात भी मत करना, बस जैसा वो कह रही है वैसा करो। उन्होंने भी मुझे हर तरफ से मजबूर कर दिया और यूं मुझे अपनी बीवी की बात माननी ही पड़ी। फिर अगले ही दिन मेरी बीवी ने सारी तैयारियां करके मेरी शादी नौकरानी से करा दी। हमारा इस बार भी निकाह उसी बाबा से पढ़वाया था उसने। जब सुहाग रात पर कमरे में गया तो जान निकल गई। जब नौकरानी और मेरी बीवी कमरे में बैठी थी और कमरे में धुआं भरा हुआ था, वो कोई अमल कर रही थी। उस अमल को देखकर मेरी जान निकल रही थी, क्योंकि कमरे के फर्श पर खून बिखरा पड़ा था जिससे वो अमल कर रही थी। शायद किसी जानदार चीज का खून था ये। मेरी बीवी मुझे देखकर उठ खड़ी हुई और नौकरानी से सब साफ करवाया और फिर कमरे से निकल गई। अगले दिन मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि मैं उसके साथ उस बाबा के पास चलूं, क्योंकि रात वाला अमल अब वहां भी करना है उसने मेरे साथ। मगर मैं दफ्तर का कहकर बहाना करके वहां से निकल गया और दफ्तर से छुट्टी के वक्त सीधा अपनी अम्मा के घर आ गया। मगर मुझे वहां जाकर हैरत का शदीद झटका लगा कि वो नौकरानी और मेरी बीवी वहां पहले से अम्मा के पास मौजूद थीं। अरे तुम यहीं आ गए, मैं तुम्हारी नई बीवी को खाला से मिलवाने लाई थी, सोचा अपनी बहू से मिल लें। ये मेरी बीवी मुझे वहां देखकर कहने लगी। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और अम्मा से कहने लगा, मुझे आपसे बात करनी है, सच सच बताना आप, आज सब कुछ। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर घबराहट छा गई, जबकि मेरी बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं बता दूं बात, अगर तुम्हारी अम्मा की इजाज़त हो तो,
क्योंकि मुझे तो उन्होंने ही बताने से मना कर रखा था। अपनी बीवी की बात सुनकर मैंने बेयकीनी से अपनी अम्मा को देखा तो उनका सर झुक गया था। यानी बता दूं खाला, अपने शौहर को बात आपका सर झुकाना मतलब कि रजामंदी दे दी आपने। मेरी बीवी ने उनसे कहा, तो तुम सुनो मेरी बात। मेरे अम्मी अब्बू की शादी को 10 साल हो गए थे। उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी, जबकि उनकी छोटी बहन तुम्हारी अम्मा जो इनके बाद ब्याही गई थी, उनके यहाँ एक बेटा और एक बेटी थी, जबकि दूसरा बच्चा भी वहाँ आने वाला था, यानी तुम। तो ये सब देखकर मेरी माँ को अपनी खाली गोद का शिद्दत से एहसास हुआ था। इसलिए वो दवाइयों से थक कर दुआओं और तावीज़ों से अपना इलाज करने लगी, और फिर बाबा जी के तावीज़ों के असर से मैं पैदा हो गई। तो उसी दिन से अम्मी ने मेरा हर मामला उन बाबा जी के हवाले कर दिया, क्योंकि वो समझती हैं कि ये खुशी उनको सिर्फ बाबा जी की वजह से नसीब हुई थी। तो बाबा जी का पहला हक था मुझ पर। मैं बीमार होती थी तब भी अम्मी डॉक्टर की बजाय उनसे इलाज करवाती थी मेरा। डॉक्टरों पर अब उनका यकीन नहीं था, और यूं आहिस्ता आहिस्ता मैंने हर मामला उनके हवाले कर दिया। रिश्ता भी उनके कहने पर तुम्हारे लिए भिजवाया था हमने। अम्मी ने मेरी शादी के सिलसिले में उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे ख़ानदान के सारे लड़कों की तस्वीरें चाहिए थी उनको, और उनमें तुम्हारी भी तस्वीर थी। यूं उन्होंने तुम्हें चुना, और तुम्हारी माँ ने इस रिश्ते को तय करने के लिए हमसे पैसे लिए थे, वो भी बहुत सारे। उनको सब पता था पहले से ही, बस वो खामोश थी, इसलिए उन्होंने पैसे लिए थे। सब रिश्तेदारों को मेरी इस बात से इख्तिलाफ था कि मैं हर मामले में बाबा जी से बात करती हूँ। वो लोग मुझे पागल समझते हैं। तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी तुम्हें ये बात पता चले और तुम उनसे नफरत करो, इसलिए हम भी इनसे किए वादे का पास रखे हुए तुमसे सारी बात छुपाए हुए थे। पर मैं कहती हूँ तुम्हें तो नफरत करनी चाहिए इनसे। इन्होंने तुम्हें मुझे सीधा सीधा बेच दिया था। जो तुम्हारे साथ चाहे करूं मैं, इनको परवाह नहीं थी। शादी की तारीख भी बाबा जी ने तय की थी, निकाह भी उन्होंने पढ़वाया। उन्होंने कहा ये घर मेरे लिए बेहतर नहीं है, दूसरे घर में रहना चाहिए मुझे, इसलिए मैंने वो घर भी तब्दील कर दिया। और अब बच्चों के मामले में भी उनकी बात ही को तरजीह दूंगी। उनके ही कहने पर तुम्हारी इस नौकरानी से शादी कराई है मैंने। देखना तुम इस इलाज से ठीक हो जाओगे, और फिर हमारे बच्चे होंगे, और हमारी ज़िंदगी में खुशी और इत्मीनान हो जाएगा, और फिर इस नौकरानी को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे हम। उसने जब बात बताना शुरू की तो सारी बात उसने बता दी, और मैं बिल्कुल जामिद खड़ा था। वहाँ से हिलने की भी सक्कत नहीं थी मुझ में। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था मेरी ज़िंदगी ख़राब करने में मेरी अम्मा का बहुत बड़ा किरदार होगा। वो मुझे पैसों के लिए बेच देंगी। मैंने अफसोस से अपनी माँ की तरफ देखा, वो सर झुकाए खड़ी थी। इस कदर लालच किया था उन्होंने, जबकि मेरी बीवी मुस्कुरा रही थी। वो पागल थी, वाकई बिल्कुल पागल थी, और खुद गर्ज भी। अब मैं मजीद जिंदगी ऐसी लड़की के साथ नहीं गुजार सकता था जो छोटे से छोटे मामले में भी किसी और की मोहताज हो। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उसको उसी वक्त तलाक दे दी। अम्मा की चीखों पुकार भी नहीं सुनी थी, और नौकरानी जो अब मेरी बीवी थी उसको वहां से लेकर चला गया। मेरी माँ ने मेरी जिंदगी खराब की थी, इसलिए मैं भी उनसे नाराज हो गया था, और एक दूसरा छोटा सा घर लेकर अपनी दूसरी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। मेरी उस दूसरी बीवी ने कहा था कि वो उसी दिन समझ गई थी जब मेरी पहली बीवी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था बाप न बनने का, कि वो मेरे काबिल नहीं, इसलिए उसने मुझसे निकाह करने की पेशकश की। तो वो देखना चाहती थी कि मेरी पहली बीवी किस हद तक खुद गर्जी दिखा सकती है, और उसको यकीन नहीं था वो आसानी से मान जाएगी। मगर वो मान गई थी और निकाह करवा दिया था उसका मेरे साथ। कुछ साल बाद हम दोनों के यहाँ हमारा एक बेटा और एक बेटी थी, और अपनी ज़िंदगी से हम मुतमईन थे। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।